मैं हूं शुएसियार खान और मेरे साथ हैं कौशिक राय। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आपका। Namaskar, good morning and welcome to this very special broadcast on the Global Millets Conference, the Shri Anna, as Honorable Prime Minister has titled Millets, and millets are the source of nutrients, and they have been described as superfoods. And this year, the year 2023, has been designated as the International Year of the Millets. The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, during the opening ceremony of the International Year of Millets at the headquarters of the Food and Agriculture Organization in Rome, had congratulated the United Nations and the FAO for launching the International Year of Millets and expressed his appreciation to the member nations for their support in marking the International Year of Millets. The Prime Minister's vision and initiatives have played a great role in the UN General Assembly declaring the year 2023 as the International Year of Millets. This move will gain the support of more than 70 nations across the globe, and this will help in creating awareness throughout the world about the significant role of millets in sustainable agriculture and its benefits as a smart and superfood. And the Global Millets Conference, the Shri Anna Conference, that has been held at the Indian Institute of Agriculture Research at Pusa, New Delhi, will see the participation of more than 100 countries, and 6 ministers from different countries will be participating in the Global Shri Anna Conference. The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, will be inaugurating this prestigious conference in just a short while from now, and we can inform our listeners that in just a short while from now, the Honorable Prime Minister will be arriving at the venue, that is the Subramanian Hall of the NSC complex at the Indian Agriculture Research Institute campus in Pusa. And the Global Shri Anna Conference will also be attended by Shri Piyush Goyal, the Minister for Commerce and Industry, Shri Narendra Singh Tomar, Minister for Agriculture and Farmers Welfare, Dr. Subramanian Jayashankar, the Minister for External Affairs, Dr. Mansukh Mandaviya, Minister for Health and Family Welfare, Shri Kailash Chaudhary, Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare, and Sushri Shobha Karanlaze, Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare. The Honorable Prime Minister, during the course of his radio broadcast, the monthly Man Ki Baat, which is extremely popular, had recalled that millets are among the earliest crops grown by humans and have been an important source of nutrients. The Prime Minister had emphasized that making it a food choice for the future. Highlighting the challenges of food security, Prime Minister Shri Narendra Modi mentioned that once-in-a-century pandemic and the arising conflicts around the world have also played truant with food security. He touched upon how climate change is affecting food availability. In India, millets are good for the consumer, cultivator and the climate, said Prime Minister Modi. Millets such as finger millet, that is ragi, foxtail millet, that is kakun or kangni, sorghum, that is jawar, pearl millet bajra, buckwheat millet kuttu and amaranth millet chola are part of the healthy Indian diet since ages. Stressing the need for diversity on the land and at the dining table, the Prime Minister informed that our health is impacted if agriculture becomes monoculture, and pointed that millets are a good way to increase agricultural and dietary diversity. The Prime Minister touched upon raising awareness to create millet mindfulness and highlighted the tremendous role that institutions and individuals can play. He added that while institutional mechanisms can encourage the production of millets and make it profitable via policy initiatives, individuals can make health-conscious and planet-friendly choices by making millets a part of their diet. And Shreya's a very interesting thing about the International Year of Millets is that recently there was a banquet at the Indian Parliament, and all the members of Parliament were invited by the presiding officers of the both houses, the Lok Sabha and the Rajya Sabha, and the Honorable Prime Minister also himself attended the banquet, and
Delicacies made out of millets were served during the banquet, and the government has also emphasized that we should encourage the cultivation of millets by making our dietary choices inclusive of millets. बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि G20 देशों के जो शिखर सम्मेलन भारत में चल रहे हैं, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें विदेशी मेहमानों के लिए भी एक मिलेट का व्यंजन जरूर होगा और उसमें उसको भी सर्व किया जाएगा. आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद पूसा के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में ग्लोबल मीट्स श्री अन्न को सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे और इस अवसर पर वो एक डाक टिकट और एक स्टैम्प भी जारी करेंगे. आपको बता दें कि भारत के प्रस्ताव पर ही संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया गया था. इसके अलावा 2023 के उत्सव को एक जन आंदोलन बनाने और भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक हब के रूप में स्थापित करने के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप ही केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, किसानों, स्टार्टअप, निर्यातकों, खुदरा व्यवसायों और अन्य हितधारकों को किसानों, उपभोक्ताओं और जलवायु के लिए मिलेट यानी जिसका नाम श्री अन्न दिया गया है के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने और प्रचार करने के लिए लगाया जा रहा है. भारत में ग्लोबल मीट्स श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें कई देशों के अलग अलग मंत्री और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं. 2 दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों के बीच पोषक अनाज के प्रचार और जागरूकता को पैदा करने के लिए पोषक अनाज की मुख्य श्रृंखला का विकास, पोषक अनाज के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी पहलू, बाजार संपर्क, अनुसंधान और विकास जैसे पोषक अनाज श्री अन्न से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर इन 2 दिन में सत्र आयोजित किए जाएंगे और सम्मेलन में विभिन्न देशों के कृषि मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, पोषण विशेषज्ञ, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, स्टार्टअप उद्योग के दिग्गज और अन्य लोग भाग लेंगे. जी बिल्कुल शोएज. The global event, as you rightly mentioned, will be held at the Subramanian Hall, named after India's well-known scientist, renowned scientist and Nobel laureate Chandrasekhar Subramanian, at the NASC complex at Indian Agriculture Research Institute campus in Pusa. And this institute played a very pioneering role along with All India Radio in our green revolution, which led to food security. And today we can say with pride that despite global conflicts, India is one of the few nations that has food security. The occasion would be graced by the Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi, and the event, that is the opening ceremony of the Global Millets Shri Anna Conference, will commence shortly. Various heads of states and agriculture ministers of 6 millet-producing nations and other important nations will be present. And as we already mentioned, that more than 100 countries are participating in the Global Shri Anna Conference. And during the inaugural session, the Honorable Prime Minister will release a customized stamp and will also unveil a currency coin on International Year of Millets. A coffee table book and a millet starter book will also be launched by the Honorable Prime Minister. An exhibition on millets will also be displayed. There will be a buyer-seller meet, BSM, with focus on millets, with the participation of more than 50 domestic and international buyers, importers, exporters and processors for promotion of millets. The exhibition will showcase millets and millet-based ready-to-cook and ready-to-eat products by millet-based startups and exporters. There will be an international conference of scientists in which more than 100 international scientists of repute will be participating, and a conference of nutritionists and chefs comprising of renowned national and international nutritionists and chefs holding discussions focusing on millets and encouraging its use will also take place during the 2-day conference. And the Honorable Prime Minister will also be dedicating to the nation the Indian Agriculture Research Institute's
Indian Institute of Millet Research at Hyderabad, and this will be done on the virtual mode by the Honorable Prime Minister during the inauguration. And now we can see, shows that the Honorable Prime Minister has reached the venue and he's been greeted by his cabinet colleague Shri Narendra Singh Tomar, the Minister for Agriculture and Farmers Welfare, Shri Mansukh Mandavia, the Minister for Health and Family Welfare, Shri Piyush Goyal, Minister for Commerce and Industry, and also other senior officials. The Honorable Prime Minister has arrived at the Indian Agriculture Research Institute at Pusa. Shoes. बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री इस वक्त पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पहुंच चुके हैं। यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जो श्री अन्न सम्मेलन है उसका उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा सेलर पायर मीट एक यहाँ की गई है, उसको भी माननीय प्रधानमंत्री उद्घाटित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री के स्वागत में सभी उनके सहयोगी केंद्रीय मंत्री जो आज के कार्यक्रम में शामिल हैं उन्होंने उनका स्वागत किया और माननीय प्रधानमंत्री इस वक्त प्रदर्शनी के अवलोकन के लिए आगे बढ़ चुके हैं। आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के विजन के कारण ही ये जो मिलेट का सम्मेलन है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संघ ने इसको घोषित किया है 2023 को मिलेट वर्ष। इसी तरह जैसे कि योगा को माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में प्रचारित और प्रसारित किया है, उसी तरह माननीय प्रधानमंत्री ने इस मिलेट को यानी कि मोटे अनाज को जो भारत के ज्वार बाजरा और इस श्रेणी में आते हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया है, जिसके कारण आज ये ग्लोबल मीट दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में आयोजित की जा रही है। हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री का जो मिलेट पे और योगा पर मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था, अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि योग दिवस और हमारे विभिन्न तरह के मोटे अनाजों मिलेट्स में क्या कॉमन है तो आप सोचेंगे ये भी क्या तुलना हुई। अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों में काफी कुछ कॉमन है तो आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल योगा डे और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स दोनों का ही निर्णय भारत के प्रस्ताव के बाद लिया है। दूसरी बात ये कि योग भी स्वास्थ्य से जुड़ा है और मिलेट्स भी सेहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरी बात और महत्वपूर्ण है, दोनों ही अभियानों में जन भागीदारी की वजह से क्रांति आ रही है। जिस तरह लोगों ने व्यापक स्तर पर सक्रिय भागीदारी करके योग और फिटनेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, उसी तरह मिलेट्स को भी लोग बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं। लोग अब मिलेट्स को अपने खान पान का हिस्सा बना रहे हैं। इस बदलाव का बहुत बड़ा प्रभाव भी दिख रहा है। इससे एक तरफ वो छोटे किसान बहुत उत्साहित हैं जो पारंपरिक रूप से मिलेट्स का उत्पादन करते थे। वो इस बात से बहुत खुश हैं कि दुनिया अब मिलेट्स का महत्व समझने लगी है। दूसरी तरफ एफपीओ और एंटरप्रेन्योर्स ने मिलेट्स को बाजार तक पहुंचाने और उसे लोगों तक उपलब्ध कराने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। आंध्र प्रदेश के नांदयाल जिले के रहने वाले केवी रामा सुब्बा रेड्डी जी ने मिलेट्स के लिए अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी छोड़ दी। मां के हाथों से बने मिलेट्स के पकवानों का स्वाद कुछ ऐसा रचा बसा था कि इन्होंने अपने गांव में बाजरे की प्रोसेसिंग यूनिट ही शुरू कर दी। सुब्बा रेड्डी जी लोगों को बाजरे के फायदे भी बताते हैं और उसे आसानी से उपलब्ध भी कराते हैं। महाराष्ट्र में अलीबाग के पास केनाड गांव की रहने वाली शर्मिला ओसवाल जी पिछले 20 साल से मिलेट्स की पैदावार में यूनिक तरीके से योगदान दे रही है। वो किसानों को स्मार्ट एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग दे रही है। उनके प्रयासों से न सिर्फ मिलेट्स की उपज बढ़ी है बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है। अगर आपको छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जाने का मौका मिले तो यहाँ के मिलेट्स कैफे जरूर जाइएगा। कुछ ही महीने पहले
शुरू हुए इस मिलेट्स कैफे में चीला, डोसा, मोमोज, पिज्जा और मंचूरियन जैसे आइटम खूब पॉपुलर हो रहे हैं। मैं आपसे एक और बात पूछूं? आपने एंटरप्रेन्योर शब्द सुना होगा, लेकिन क्या आपने मिलेटप्रेन्योर सुना है क्या? ओडिशा की मिलेटप्रेन्योर्स आजकल खूब सुर्खियों में है। आदिवासी जिले सुंदरगढ़ की करीब 1,500 महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप ओडिशा मिलेट्स मिशन से जुड़ा हुआ है। यहाँ महिलाएं मिलेट से कुकीज, रसगुल्ला, गुलाब जामुन और केक तक बना रही है। बाजार में इनकी खूब डिमांड होने से महिलाओं की आमदनी भी बढ़ रही है। कर्नाटका के कलबुर्गी में अलंद भुताई मिलेट्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी ने पिछले साल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च की देखरेख में काम शुरू किया। यहाँ के खाकरा, बिस्कुट और लड्डू लोगों को भा रहे हैं। कर्नाटका के ही बीदर जिले में हुलसूर मिलेट प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ी महिलाएं मिलेट्स की खेती के साथ ही उसका आटा भी तैयार कर रही है। इससे इसकी कमाई भी काफी बढ़ रही है। प्राकृतिक खेती से जुड़े छत्तीसगढ़ के संदीप शर्मा जी के एफपीओ से आज 12 राज्यों के किसान जुड़े हैं। बिलासपुर का यह एफपीओ 8 प्रकार के मिलेट्स का आटा और उसके व्यंजन बना रहा है। साथियों, आज हिंदुस्तान के कोने कोने में G20 की समिट्स लगातार चल रही है और मुझे खुशी है कि देश के हर कोने में जहां भी G20 की समिट हो रही है, मिलेट से बने पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन उसमें शामिल होते हैं। यहाँ बाजार से बनी खिचड़ी, पोहा, खीर और रोटी के साथ ही रागी से बने पायसम, पूड़ी और डोसा जैसे व्यंजन भी परोसे जाते हैं। G20 के सभी वेन्यूज पर मिलेट एग्जीबिशन में मिलेट से बनी हेल्थ ड्रिंक, सीरियल्स और नूडल्स को शोकेस किया गया। दुनिया भर में इंडियन मिशंस भी इनकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश का ये प्रयास और दुनिया में बढ़ने वाली मिलेट्स की डिमांड हमारे छोटे किसानों को कितनी ताकत देने वाली है। यह था माननीय प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम में संबोधन, जो मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो मिलेट और मोटे अनाज को किसान हमारे पैदा कर रहे हैं, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री ने बोला। और हम देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री इस वक्त पूसा के कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पे आ चुके हैं। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लेके चलते हैं। Yes, Shoes, the Honorable Prime Minister has arrived at the Subramanian Hall at the NASC campus at Indian Agriculture Research Institute campus in Pusa, and he is on the dais along with the Minister for Agriculture and Farmers Welfare, Shri Narendra Singh Tomar, and other cabinet colleagues, the Minister for Commerce and Industry, and now the Agriculture and Farmers Welfare Minister is presenting a bouquet of millets. And this is indeed a wonderful sight to the Honorable Prime Minister of India. And also on the dais are the Minister for Health and Family Welfare, Shri Mansukh Mandavia, and the Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare, Shri Kailash Chaudhary. As we mentioned that more than 1,000 delegates are participating in this 2-day Global Millets Shree Anna conference, and in a short while from now the Honorable Prime Minister will be unveiling a coffee table book and also a customized postal stamp and currency coin on the occasion of the International Years of Millet 2023. The Honorable Prime Minister will also be globally launching the Indian Agriculture Research Institute's Indian Institute of Millet Research at Hyderabad, and this year, as we mentioned earlier, has been designated as the International Year of Millets, Shree Anna, and the Honorable Prime Minister has called upon the citizens of India to accept Shree Anna as a popular diet choice, and this is something which is as old as Indian agriculture itself. If we look at pockets of India, different pockets of India, millets have a very primary role. And now the Honorable Minister for
Agriculture and Farmers Welfare Shri Narendra Singh Tomar. सभी को नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्री और राज्यसभा में नेता सत्तापक्ष माननीय श्री पीयूष गोयल जी, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री माननीय श्री मनसुख मांडविया जी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे माननीय श्री कैलाश चौधरी जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए अनेक देशों के माननीय कृषि मंत्रीगण, राजदूतगण, एग्री स्टार्टअप्स, वैज्ञानिक और आज वर्चुअल रूप से विश्व भर में भारतीय दूतावासों से जुड़े समस्त महानुभाव, देश में कृषि विज्ञान केंद्र, आईसीआर के संस्थान, एफपीओज से वर्चुअल रूप से जुड़े हजारों हजार की संख्या में उपस्थित सज्जनों, बहनों और मीडिया के मित्रों, आज मिलेट्स ईयर का शुभारंभ उत्सव है। मिलेट्स के विषय को लेकर जब भी कोई सवाल आया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही उत्साह से हम सब लोगों का मार्गदर्शन किया और उन्हीं के मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप यह कार्यक्रम उत्तरोत्तर ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। आज मिलेट्स उत्सव का दिन है। विश्व भर के लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी उनकी उदारता पूर्वक उपस्थिति निश्चित रूप से हम सब लोगों का उत्साहवर्धन करती है। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित और वर्चुअल रूप से जुड़े हुए हजारों हजार लोगों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत इस मौके पर अभिनंदन करना चाहता हूं। सारी दुनिया इस बात की साक्षी है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितना भारत को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं, लगभग उसी मात्रा में समूचे विश्व का कल्याण हो और विश्व में शांति हो और विश्व के सामने जो विद्यमान चुनौतियां हैं उनका समाधान हो सके, इसके लिए भी उनका सदप्रयत्न हमेशा रहता है। वसुधैव कुटुंबकम भारत की अवधारणा है और उस अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए वो अपने जीवन का एक एक पल पूरा समर्पित करते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला, उसके बाद देश की समस्याओं के समाधान के लिए, छोटे छोटे गैप्स को भरने के लिए उन्होंने योजनाओं का सृजन किया, सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया। उससे भारत की निश्चित रूप से ताकत और प्रतिष्ठा बढ़ी। साथ ही भारतीय विधा, भारतीय योग था। प्रधानमंत्री जी की हमेशा से मान्यता रही है कि हम स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी भी उपलब्ध करा दें, लेकिन अगर रोग बढ़ते रहेंगे तो स्वास्थ्य सुविधाएं हमेशा कम ही पड़ेंगी। और इसलिए प्रधानमंत्री जी
कि हमेशा ये कोशिश रही कि रोग कम से कम हो, इसका प्रयास हमें करते रहना चाहिए। इसलिए देश में भी स्थान स्थान पर वेलनेस सेंटर की स्थापना करने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा हुआ और ठीक उसी दिशा में विश्व की दृष्टि से विश्व को योग के महत्व को समझाया। और मुझे प्रसन्नता भी है और गौरव भी है कि सारी दुनिया ने प्रधानमंत्री जी के आग्रह को स्वीकार किया और योग को अपनाया। यह निश्चित रूप से हम सबके लिए गर्व का विषय है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात की चिंता करते रहते हैं कि हमारे देश का और दुनिया का जो छोटा किसान है, जो वर्षा आधारित खेती करता है, उसकी ताकत बढ़नी चाहिए। साथ ही साथ आज लोगों के पास खाद्यान्न की प्रचुरता तो है, लेकिन भोजन की थाली में जो पोषकता का अभाव है, उस अभाव को भी भरने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। और इसलिए आप सबने देखा होगा कि 2018 में प्रधानमंत्री जी ने मिलेट्स यानी मोटा अनाज, पोषक अनाज और अब बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न कहकर इस मोटे अनाज को जो प्रतिष्ठा दी है, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। इस श्री अन्न को भोजन की थाली में प्रतिष्ठा मिले और हमारे छोटे किसान की ताकत बढ़े, मिलेट्स की खेती प्रोत्साहित हो, मिलेट्स के उपभोग के लिए लोग आगे बढ़ें। इस दृष्टि से 2018 में मिलेट्स को पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित किया गया। वर्ष भर कार्यक्रम किए गए। परिणाम स्वरूप मिलेट्स का उत्पादन भी बढ़ा, उत्पादकता भी बढ़ी और मिलेट्स की मांग भी बढ़ी। 2018 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ में मिलेट्स की विशेषता बताते हुए मिलेट्स के महत्व को माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रतिपादित किया और मुझे कहते हुए गौरव है कि दुनिया के 72 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और यूएन ने 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित किया। उसका शुभारंभ आज हम सब लोग कर रहे हैं। मिलेट्स निश्चित रूप से भारत के लिए ही नहीं, समूची दुनिया के लिए महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद है। मिलेट्स में पोषक तत्व हैं। मिलेट्स की खेती को सामान्य भूमि में किया जा सकता है। मिलेट्स की खेती में फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होती, अपितु आदानों की जो लागत में कमी आनी चाहिए वो भी मिलेट्स की खेती से आती है। और मिलेट्स की खेती जहां होती है तो मिलेट्स का पौधा निश्चित रूप से भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाने में योगदान करता है। मिलेट्स आधारित जो उत्पाद हैं, उनके प्रयोग से मनुष्य की भोजन की थाली में और उसके जीवन के खान पान में जो पोषक तत्वों का अभाव है वो भी भरा जाता है। और साथ ही साथ यह मिलेट्स की खेती पर्यावरण को भी संरक्षित करने के काम में आती है। 2023 मिलेट्स ईयर है। इसकी तैयारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश भर में पूरी सरकार ने राज्य सरकारों के साथ, अन्य संस्थाओं के साथ, आयातक निर्यातक के साथ, इंडस्ट्री के साथ, भोजन बनाने वाले महानुभावों के साथ और स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजों में, अस्पतालों में सबने मिलकर इसको प्रोत्साहित और आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। और आज मैं समझता हूं कहीं भी देश में बात चलती है तो मिलेट्स की बात जरूर आती है। और मुझे कहते हुए गौरव है, जब इस बार भारत का बजट प्रस्तुत हुआ तो उसमें भी मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रावधान किया। भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान हैदराबाद वह विश्व स्तरीय उत्कृष्ट संस्थान बने, इसकी भी
घोषणा की गई और मिलेट्स को श्री अन्न कहकर जो सम्मान दिया वो आप सब लोगों के सामने है। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत ही कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आज का यह दिन और मिलेट्स ईयर 2023 यह इतिहास में हमेशा साक्षी रहे, इसलिए प्रधानमंत्री जी आज एक डाक टिकट भी और एक सिक्का भी जारी करेंगे, जिससे आने वाले कल में पीढ़ियां इस बात को याद रखे कि 2023 मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया गया था। आज मैं इस मौके पर आप सब लोगों की ओर से पुनः एक बार प्रधानमंत्री जी का और विदेशों से जो हमारे मेहमान आए हैं उन सब का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। भारत माता जिंदाबाद। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर स्वागत उद्बोधन दे रहे थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने मोटे अनाज की उपयोगिता के बारे में और मोटे अनाज को प्रचार प्रसार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। अब माननीय प्रधानमंत्री एक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे जो 2023 वर्ष मिलेट वर्ष के रूप में अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया गया है। उसको प्रचार प्रसार करने के लिए मनाया गया है, उसकी याद में इस सिक्के का बनाया गया है। प्रेसिडेंट हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली के वीडियो संदेश हमें प्राप्त हुए हैं। यह अवसर है जब वो वीडियो संदेश हम आपके समक्ष प्रस्तुत करें। आइए सुनते हैं ये वीडियो संदेश। And now, Your Excellency message. Narendra Modi, Prime Minister of India, distinguished guests, ladies and gentlemen. It gives me a great pleasure to address this very important global conference of International Year of Millets 2023. I wish to congratulate the government of India for organizing this event. As you all know, when the global agri-food system faces challenges to feed an ever-growing global population, resilient cereals like millets provide an affordable and nutritious option. Millets are incredible ancestral crops with high nutritional value. They play an important role and contribute to our collective efforts to empower smallholder farmers. However, the productivity of finger millet in Ethiopia is less than 2.4 tons per hectare, which is only a little higher than 1/3 of its potential yield, which is 6 tons per hectare. It is also vital in achieving sustainable development, eliminate hunger, adapt to climate change, promote biodiversity, and transform agri-food systems. Ethiopia is one of the few millet-producing countries in sub-Saharan Africa and the center of the genetic diversity of the finger millet crops. As declared by the United Nations General Assembly, observing the International Year of Millets 2023 and the push for collective efforts towards increasing millet production will contribute to the 2030 Agenda for Sustainable Development. This is a timely reminder, as this event provides a unique opportunity to share experience among countries and raise awareness on the nutritional and health benefits of millet consumption. It's also a good opportunity to direct policy attention towards the cereal's suitability for cultivation under adverse climatic conditions and creating sustainable and innovative market opportunities. I hope the 2023 conference galvanizes interest in millets among various stakeholders like farmers, youth, and civil societies, and push governments and policymakers to prioritize the production of these cereals. I'm confident this conference will bring collective action and direct policy attention towards millets production. I thank you.
That was a video address by the Ethiopian President Saleh Work Zewde, and we are now here with Mohammed Irfan Ali, the President of Guyana, who's speaking on this first global conference on the International Year of Millets 2023. Indeed, it was India which 5 years ago launched its own National Year of Millets. And it was India which proposed to the United Nations that it declares this year, 2023, as International Year of Millets. India, as a global leader in the production and export of millets, is assuming global leadership in advancing the objectives of the International Year of Millets. In so doing, India is placing its expertise and service in addressing one of the world's most foremost challenges, food insecurity. The declaration of this International Year is linked to the recognition that hunger and food insecurity are potent threats to the attainment of the Sustainable Development Goals. Millets have the potential to be a game changer in ensuring greater food security across the world, given their high nutritional properties and resilience in adapting to hot and dry climatic conditions. Millets provide an affordable and nutritious option to addressing food insecurity. Its production enhances rural incomes and supports poverty reduction. Guyana has identified the production of millets as having great potential towards enhancing national and regional food security. As CARICOM implements Vision 25 by 2025 to reduce the food import bill by approximately $1 billion by 2025, millet is an ideal solution to increase self-sufficiency and reduce reliance on imported cereal grains. Guyana looks forward to strengthening its cooperation with India to kickstart large, medium, and small-scale production of millets. India is the largest millet producer in the world, and through collaboration, Guyana hopes to embark soon on the sustainable production of millets. In pursuit of this ambition, the government of Guyana has offered 200 acres of land for exclusive millet production. In return, the government of India will provide technical guidance and support with technology and technology transfer for millet production. Guyana is considered an ideal ecozone with optimum conditions for the growth and development of millets. Our warm climate will allow for a conducive soil temperature that is essential for the sprouting and germination of the millet seeds. Based on the minimal soil and climatic requirements, Guyana will commence trials to produce millets in 3 acres across the country, Region 4, Region 9, and Region 10. These identified areas represent the cropping zone in which similar crops like corn and soya are adaptive and are being produced on a large scale. I'm therefore pleased to join with the Food and Agriculture Organization of the United Nations and the government of India in celebrating the International Year of Millets. Together we can achieve sustainable development, eliminate hunger, adopt to climate change, and transform agri-food systems by exploring every viable opportunity. I therefore wish the conference every success and congratulate Prime Minister Modi and his team. Thank you, and may God bless you. That was the President of Guyana, Mohammed Irfan Ali, in giving a video message on the Global Millets Shree Conference. And now the Honorable Prime Minister of India will be unveiling a stamp, a commemorative stamp on the occasion, and it will be followed by unveiling of a commemorative coin by the Honorable Prime Minister. Thereafter, the Honorable Prime Minister will digitally launch a compendium of Indian millets, startups, and then he will also digitally launch a book on millets, standards, and
there will be a short film on Shree, and it needs to be mentioned here that India is one of the largest producers of millets, and now many other countries are going to cultivate millets, and Honorable Prime Minister is digitally releasing this commemorative stamp of the Indian Post, Bharatiya Dak, on the occasion of International Year of Millets 2022. It's a 5 rupee commemorative postal stamp that has been unveiled by the Honorable Prime Minister, and also our cover on the occasion of the International Year of the Millets. This is a contribution of the Department of Posts, Government of India. माननीय प्रधानमंत्री ने रिपोर्ट का बटन दबाकर इस डाक टिकट को जारी किया। आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। दिव्य सज्जनों, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के उत्सव के उपलक्ष्य में 75 रुपए का एक विशेष स्मारक सिक्का भी तैयार किया गया है। ये आजादी का अमृत काल मनाने की दिशा में एक कदम है। मैं निवेदन करूंगा पुनः माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे रिमोट का बटन दबाकर इस स्मारक सिक्के का एक बार पुनः डिजिटली अनावरण करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। The Honorable Prime Minister has now unveiled this special commemorative coin that is a 75 rupee coin in tune with the Amrit Kaal of India's independence. देवी सज्जनों, भारत में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के मिलेट्स यानी श्री अन्न, उनसे होने वाले स्वास्थ्य और पोषण संबंधी लाभ, ये सब बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए। भारत सरकार ने भी मिलेट्स के लिए लागू होने वाले स्वास्थ्य नियमों और मानकों का विवरण विस्तार से तैयार किया है और इन सब जानकारियों को एक पुस्तिका के रूप में संकलित और प्रकाशित किया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने करकमलों से मिलेट्स से जुड़े इस स्टैंडर्ड बुक का डिजिटल लोकार्पण करने की कृपा करें। And the Honorable Prime Minister is now digitally launched this standard book on Shree Anna. It is titled Shree Anna Holistic Overview, and it has been prepared by FSSAI, the Food and Standardization Authority of India. And as we were mentioning that this conference will see special sessions on popularizing different dietary issues of millets, and the experts will be discussing over 2 days on how to popularize and also take to the common people the millets. Of course, Indians have been consuming millets for centuries, and the Honorable Prime Minister has once again reiterated the benefits, especially the dietary and health benefits of millets. माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से आज इस संस्थान को मिलेट यानी श्री अन्न के वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में पहचान और प्रतिष्ठा मिलने जा रही है। आज यहां इसके लोकार्पण के साथ ही श्री अन्न और IYM 2023 पर एक वीडियो फिल्म भी हम यहां प्रदर्शित करेंगे। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे अपने करकमलों से रिमोट का बटन दबाकर IIMR हैदराबाद को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में उसका लोकार्पण करें। And now the Honorable Prime Minister has launched the Indian Institute of Millets Research as a global center of excellence on millets, Shree, and this is a giant step in popularizing millets. Is centuries old. Varieties of millets have been mentioned in the olden texts, and millets have always been an integral part of Indian cuisine and culture. Millets are sustainable to the environment, to the farmers growing it, and provide affordable and high nutrient options for all. India is the largest producer of Sri Anna, also known as millets in the world. It is heralding the world towards a prosperous agricultural demand through its millets production and export. On the initiatives of the Government of India, under the visionary leadership of our Prime Minister, the United Nations declared 2023 as the International Year of Millets to promote the production of less water-intensive and nutritive crops at the global platform. आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार, अनेक नाम हैं। आज जब मिलेट घर घर में पहुंच रहा है,
पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई। The aim of the International Year of Millets is to increase their consumption, ensure nutrition security, and provide millets a new identity in the international market. India is cultivating a number of millets and upping the entire landscape. Millets are also called superfoods, and these are rich sources of minerals like calcium, iron, zinc, phosphorus, magnesium, and potassium. The Government of India has declared the Indian Institute of Millets Research, Hyderabad, as the Center of Excellence to provide its technology and best methods for the cultivation of millets, which would be helpful for domestic as well as international stakeholders. To celebrate International Year of Millets, today, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, is inaugurating the first Global Millets, Shree Conference, Exhibition and Buyer-Seller Meet. In this global event, participation of delegates from various agriculture ministries of millet-producing nations and importing nations, international organizations, scientists, national and international nutritionists and chefs will be seen. We strongly believe that the International Year of Millets 2023 will open new doors for millet-producing farmers, marginal farmers and tribal communities. India will play an important role in this mission by leading the way to address global food security of the world. Millets, farmers' prosperity, food and nutrition security. देवी सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ ऐसे सभी महत्वपूर्ण प्रयासों को आपकी शुभकामनाएं मिली हैं, उसके लिए आप सबका आभार। मिलेट, श्री अन्न, सुपर फूड, न्यूट्री सीरियल, ऐसे अनेक पहचान रखने वाला मिलेट आज विश्व भर में सबके आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति के स्वास्थ्य, किसान की समृद्धि और पर्यावरण की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने की अपार संभावनाएं अपने अंदर समेटे है। वैश्विक स्तर पर मिलेट को पहचान दिलाने, लोकप्रिय बनाने और अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाए जाने के पीछे जिनका विजन और दूरदृष्टि है, वे हैं भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। देवी सज्जनों, आप सबकी करतल ध्वनि के साथ आइए निवेदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, will now address the Global Millets Conference. कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री नरेंद्र तोमर जी, मनसुख मांडविया जी, पीयूष गोयल जी, कैलाश चौधरी जी, विदेशों से आए हुए कुछ मंत्रीगण, गयाना, मालदीव्स, मॉरिशस, श्रीलंका, सूडान, सूरीनाम और गाम्बिया के सभी माननीय मंत्रीगण, दुनिया के विभिन्न हिस्सों से कृषि, पोषण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स, विविध एफपीओज और स्टार्टअप्स के युवा साथी, देश के कोने कोने से जुड़े लाखों किसान, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सभी को ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरह के आयोजन न केवल ग्लोबल गुड के लिए जरूरी है, बल्कि ग्लोबल गुड में
भारत की बढ़ती जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। साथियों, आप भी जानते हैं कि भारत के प्रस्ताव और प्रयासों के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया है। जब हम इसे किसी संकल्प को आगे बढ़ाते हैं तो उसे सिद्धि तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम होती है। मुझे खुशी है कि आज विश्व जब इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रहा है तो भारत इस अभियान की अगुवाई कर रहा है। ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस इसी दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें मिलेट्स की खेती, उससे जुड़ी अर्थव्यवस्था, हेल्थ पर उसके प्रभाव, किसानों की आय, ऐसे अनेक विषयों पर सभी विद्वान और अनुभवी लोग विचार विमर्श करने वाले हैं। इसमें ग्राम पंचायतें, कृषि केंद्र, स्कूल, कॉलेज और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी हमारे साथ शामिल है। इंडियन एम्बेसी से लेकर कई देश भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। भारत के 75 लाख से ज्यादा किसान आज वर्चुअली हमारे साथ इस समारंभ में मौजूद है। ये भी इसके महात्म्य को दर्शाता है। मैं एक बार फिर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी यहां मिलेट पर स्मारक डाक टिकट और सिक्के का भी विमोचन किया गया है। यहां बुक ऑफ मिलेट स्टैंडर्ड्स को भी लॉन्च किया गया है और इसके साथ ही ICAR के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च को ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया गया है। और यहां मंच पर आने से पहले मैं एग्जीबिशन देखने गया था। मैं आप सबसे भी, और जो लोग इन दिनों दिल्ली में हो या दिल्ली आने वाले हो, उनसे भी आग्रह करूंगा कि एक ही जगह पर मिलेट्स की पूरी दुनिया को समझना, उसकी उपयोगिता को समझना, पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, किसानों की आय के लिए, सभी पहलुओं को समझने के लिए ये एग्जीबिशन देखना मैं आप सबको आग्रह करूंगा, जरूर देखें। हमारे युवा साथी किस प्रकार से नए नए स्टार्टअप लेकर के इस फील्ड में आए हैं, ये भी अपने आप में प्रभावित करने वाला है। ये सभी भारत के कमिटमेंट, भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। फ्रेंड्स, ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस से जुड़े विदेशी अतिथियों को लाखों किसानों के सामने मैं आज एक जानकारी भी दोहराना चाहता हूं। मिलेट्स की ग्लोबल ब्रांडिंग, कॉमन ब्रांडिंग को देखते हुए भारत में मिलेट्स या मोटे अनाज को अब श्री अन्न की पहचान दी गई है। श्री अन्न केवल खेती या खाने तक सीमित नहीं है। जो लोग
भारत की परंपराओं से परिचित है, वो ये भी जानते हैं कि हमारे यहां किसी के आगे श्री ऐसे ही नहीं जुड़ता है। जहां श्री होती है वहां समृद्धि भी होती है और समग्रता भी होती है। श्री अन्न भी भारत में समग्र विकास का एक माध्यम बन रहा है। इसमें गांव भी जुड़ा है, गरीब भी जुड़ा है। श्री अन्न यानी देश के छोटे किसानों की समृद्धि का द्वार। श्री अन्न यानी देश के करोड़ों लोगों के पोषण का कर्णधार। श्री अन्न यानी देश के आदिवासी समाज का सत्कार। श्री अन्न यानी कम पानी में ज्यादा फसल की पैदावार। श्री अन्न यानी केमिकल मुक्त खेती का बड़ा आधार। श्री अन्न यानी क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने में मददगार। साथियों, हमने श्री अन्न को ग्लोबल मूवमेंट बनाने के लिए लगातार काम किया है। 2018 में हमने मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स के तौर पर घोषित किया था। इस दिशा में किसानों को जागरूक करने से लेकर बाजार में इंटरेस्ट पैदा करने तक हर स्तर पर काम किया गया। हमारे यहां 12-13 राज्यों में प्रमुखता से मिलेट्स की खेती होती है, लेकिन इनमें घरेलू खपत प्रति व्यक्ति प्रति माह 2-3 किलो से ज्यादा नहीं थी। आज ये बढ़कर 14 किलो प्रति माह हो गई है। यानी 2-3 किलो से बढ़कर के 14 किलो। मिलेट फूड प्रोडक्ट्स की बिक्री भी करीब 30% बढ़ी है। अब जगह जगह मिलेट कैफे नजर आने लगे हैं। मिलेट से जुड़ी रेसिपीज के सोशल मीडिया चैनल्स बन रहे हैं। देश के 19 जिलों में मिलेट्स को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत भी सिलेक्ट किया गया है। साथियों, हम जानते हैं कि श्री अन्न उगाने वाले ज्यादातर किसान छोटे किसान हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, और कुछ लोग ये जानकर जरूर चौंक जाएंगे कि भारत में मिलेट्स की पैदावार से करीब करीब 2.5 करोड़ छोटे किसान सीधे जुड़े हुए हैं। इनमें से ज्यादातर के पास बहुत कम जमीन है और उन्हें जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का भी सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है। भारत का मिलेट मिशन श्री अन्न के लिए शुरू हुआ ये अभियान देश के 2.5 करोड़ किसानों के लिए वरदान साबित होने जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार मिलेट्स पैदा करने वाले 2.5 करोड़ छोटे किसानों की किसी सरकार ने इतनी बड़ी मात्रा में सुध ली है। जब मिलेट श्री अन्न का मार्केट बढ़ेगा तो इन 2.5 करोड़ छोटे किसानों की आय बढ़ेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बहुत लाभ मिलेगा। प्रोसेस और पैकेज फूड आइटम्स के जरिए मिलेट अब स्टोर्स और मार्केट तक पहुंच रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ही देश में
श्री अन्न पर काम करने वाले 500 से ज्यादा स्टार्टअप्स भी बने हैं। बड़ी संख्या में एफपीओज इस दिशा में आगे आ रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाएं भी मिलेट्स के उत्पाद बना रही है। गांव से निकलकर ये प्रोडक्ट्स मॉल और सुपर मार्केट तक पहुंच रहे हैं। यानी देश में एक पूरी सप्लाई चेन विकसित हो रही है। इससे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है और छोटे किसानों की भी बहुत बड़ी मदद हो रही है। साथियों, भारत इस समय G20 का प्रेसिडेंट भी है। भारत का मोटो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। पूरे विश्व को एक परिवार मानने की यह भावना इंटरनेशनल मिलेट ईयर में भी झलकती है। विश्व के प्रति कर्तव्य भावना और मानवता की सेवा का संकल्प सदैव भारत के मन में रहा है। आप देखिए, जब हम योग को लेकर आगे बढ़े तो हमने ये भी सुनिश्चित किया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए पूरे विश्व को उसका लाभ मिले। मुझे खुशी है कि आज दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में योग को अधिकृत रूप से बढ़ावा मिल रहा है। आज दुनिया के 30 से ज्यादा देश आयुर्वेद को भी मान्यता दे चुके हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के रूप में आज भारत का यह प्रयास सस्टेनेबल प्लेनेट के लिए एक प्रभावी मंच का काम कर रहा है। और ये भी भारत के लिए खुशी की बात है कि आयसा से भी 100 से ज्यादा देश जुड़ चुके हैं। आज चाहे लाइफ मिशन की अगुवाई हो, क्लाइमेट चेंज से जुड़े लक्ष्यों को समय से पहले हासिल करना हो, हम अपनी विरासत से प्रेरणा लेते हैं, समाज में बदलाव को शुरू करते हैं और उसे विश्व कल्याण की भावना तक लेकर जाते हैं। और यही आज भारत के मिलेट मूवमेंट में भी दिख रहा है। श्री अन्न सदियों से भारत में जीवन शैली का हिस्सा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, रागी, सामा, कांगनी, चीना, कोंदो, कुटकी, कुट्टू जैसे कितने ही श्री अन्न भारत में प्रचलन में है। हम श्री अन्न से जुड़ी अपनी कृषि पद्धतियों को, अपने अनुभवों को विश्व के साथ साझा करना चाहते हैं। हम विश्व के पास जो नया है, दूसरे देशों के पास विशेषताएं हैं, उसे भी सीखना चाहते हैं। सीखने का भी हमारा इरादा है। इसलिए जिन मित्र देशों के एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहां उपस्थित हैं, मैं उनसे विशेष आग्रह है कि हम इस दिशा में एक स्टेबल मैकेनिज्म डेवलप करें। इस मैकेनिज्म से आगे चलकर फील्ड से लेकर मार्केट तक, एक देश से दूसरे देश तक एक नई सप्लाई चेन विकसित हो, ये हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। साथियों, आज इस मंच पर मैं मिलेट्स की
एक और ताकत पर जोर देना चाहता हूं। मिलेट्स की यह ताकत है इसका क्लाइमेट रेजिलियंट होना। बहुत एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में भी मिलेट्स का आसानी से उत्पादन हो जाता है। इसकी पैदावार में अपेक्षाकृत पानी भी कम लगता है, जिससे वाटर क्राइसिस वाली जगहों के लिए एक पसंदीदा फसल बन जाती है। आप सब जानकार लोग जानते हैं कि मिलेट्स की एक बड़ी खूबी यह है कि इसे केमिकल के बिना भी प्राकृतिक तरीके से उगाया जा सकता है। यानी मिलेट्स मानव और मिट्टी दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की गारंटी देता है। साथियों, जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि आज दुनिया दो तरह की चुनौतियों से जूझ रही है। एक तरफ ग्लोबल साउथ है, जो अपने गरीबों की फूड सिक्योरिटी को लेकर चिंतित है। दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा है, जहां फूड हैबिट से जुड़ी बीमारियों एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। यहां खराब पोषण एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी एक तरफ फूड सिक्योरिटी की समस्या तो दूसरी तरफ फूड हैबिट्स की परेशानी। दोनों ही जगहों पर इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि पैदावार के लिए भारी मात्रा में केमिकल इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन श्री अन्न ऐसी हर समस्या का भी समाधान देते हैं। ज्यादातर मिलेट्स को उगाना आसान होता है, इसमें खर्च भी बहुत कम होता है और दूसरी फसलों की तुलना में ये जल्दी तैयार भी हो जाता है। इनमें पोषण तो ज्यादा होता ही है, साथ ही स्वाद में भी विशिष्ट होते हैं। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए संघर्ष कर रहे विश्व में श्री अन्न बहुत बड़ी सौगात की तरह है। इसी तरह श्री अन्न से फूड हैबिट्स की समस्या भी ठीक हो सकती है। हाई फाइबर वाले इन फूड्स को शरीर और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना गया है। इनसे लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियों को रोकने में बड़ी मदद मिलती है। यानी पर्सनल हेल्थ से लेकर ग्लोबल हेल्थ तक हमारी कई समस्याओं के हल में श्री अन्न से हम जरूर रास्ता खोज सकते हैं। साथियों, मिलेट के क्षेत्र में काम करने के लिए हमारे सामने अभी अनंत संभावनाएं मौजूद है। आज भारत में नेशनल फूड बास्केट में श्री अन्न का योगदान केवल 5-6% है। भारत के वैज्ञानिकों को, कृषि क्षेत्र के जानकारों से मेरा आग्रह है कि हमें इसे बढ़ाने के लिए तेजी से काम करना होगा। हमें हर साल के लिए अचीवेबल टारगेट सेट करने होंगे। देश ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए पीएलआई स्कीम भी शुरू की है। इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेट सेक्टर को मिले, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां मिलेट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आगे आए। इस दिशा को, इस सपने को सिद्ध करना हमें सुनिश्चित करना होगा। कई राज्यों ने अपने यहां पीडीएस सिस्टम में श्री अन्न को शामिल किया है। दूसरे राज्यों में भी इस तरह के प्रयास शुरू किए जा सकते हैं। मिड डे मील में भी श्री अन्न को शामिल करके हम बच्चों को अच्छा पोषण दे सकते हैं, खाने में नया स्वाद और विविधता जोड़ सकते हैं। मुझे विश्वास है इन सभी बिंदुओं पर इस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से चर्चा होगी और उन्हें इंप्लीमेंट करने का रोड मैप भी
तैयार किया जाएगा। हमारे अन्नदाता के और हम सबके साझा प्रयासों से श्री अन्न भारत की और विश्व की समृद्धि में नई चमक जोड़ेगा। इसी कामना के साथ आप सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारे दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने समय निकाल कर हमें जो संदेश भेजा, उन दोनों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, delivered the inaugural address at the Global Millets, that is Shri Anna Conference 2023 at the Subramanian Hall at the Indian Agriculture Research Institute, Pusa Complex in New Delhi. The Honorable Prime Minister also thanked the Presidents of Ethiopia and Guyana for their video messages. The Honorable Prime Minister said that a global movement related to millets is an important step since they are easy to grow, climate resilient and drought resistant. They are a source of balanced nutrition for consumers. They benefit cultivators and our environment since they need lesser water and are compatible with the natural ways of farming. The Prime Minister expressed confidence that the International Year of Millets 2023 will start a mass movement towards a secure, sustainable and healthy future. India has a production of more than 170 lakh tons of millets, which is about 80% of the millets that is produced in Asia. The Prime Minister said that the global conference on Shri Anna will benefit 2.5 crore small farmers, as will they will get new inputs from this, and it will also help the rural economy, especially the processed and packaged food products. 500 startups will also benefit from this. पूसा नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में आयोजित श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री ने किया। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने वहां उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस विशेष प्रसारण से सिर्फ इतना ही। मैं श्रेयसियार खान, अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय, सहयोगी तुषार पराशर, विक्रम सिंह, कार्यक्रम प्रभारी प्रबोध कुमार और शिवनंदन के साथ आज्ञा लेता हूं। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी दिल्ली है। उन्होंने कहा कि ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।